Hello to all class 10 students. Class, we are going to start with the next topic or the topic we were doing yesterday. Further, we are going to start with this is factor affecting price elasticity of demand. So I told you earlier also what is price elasticity of demand. Price elasticity of demand is the response of change in demand due to the change in price, right? When we measure the change in demand due to the change in price, this is known as price elasticity of demand. I told you the change could be rise or fall. So this measurement of measuring the demand due to the change in price is known as price elasticity of demand. So there are certain factors which affects price elasticity of demand, and I told you price elasticity of demand could be of four uh, five types. First is perfectly inelastic, then perfectly elastic, then unitary elastic, and then your relatively less elastic and relatively more elastic. So this we discussed in our last class also. एंड परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या होता है, इवन द प्राइस चेंजेस द डिमांड डज नॉट चेंजेस. प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, प्राइस कितना बढ़े कितना घटे, इनमें कोई चेंज नहीं आता है. लाइक फॉर एग्जांपल मेडिसिन अगर आपकी बहुत सस्ती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर गोइंग टू परचेज मेडिसिन एंड कीप एट योर प्लेस, right? So this is inelastic demand. When the price changes, the demand does not changes. Now perfectly elastic demand क्या है? Perfectly elastic demand is that demand when at a particular price the customer is ready to buy any amount of commodity, and even at a slightly higher price the customer is not interested in buying anything. एक particular price में customer कितना भी खरीदने को तैयार है, लेकिन ये price अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो customer उस goods को नहीं खरीदता है. तो this is perfectly elastic. Unitary elastic में क्या है? Unitary elastic में जितनी भी आपकी प्राइस में चेंज आया है परसेंटेज वाइज, वट एवर द चेंज इन प्राइस इन परसेंटेज, द डिमांड इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द चेंज इन डिमांड इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम परसेंटेज वाइज. आपका अगर 10% प्राइस राइज या फॉल हुआ है तो डिमांड भी 10% ही राइज या फॉल होगी. अगर आपकी प्राइस 5% फॉल या राइज हुआ है तो आपकी डिमांड भी 5% ही percentage wise ही fall या rise होगी. Relatively less elastic demand, it means that relatively less elastic, relatively more elastic. So in relatively less elastic, even there is a greater change in price, the demand, there is no much change in demand. बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज आने के बावजूद भी डिमांड में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है. एंड रिलेटिवली मोर इलास्टिक में क्या होगा, यहाँ पे आपका थोड़ा सा भी प्राइस में अगर चेंज आता है तो देयर विल बी अ ग्रेट change in the demand of commodity, right children? So these were around 5 types of magnitudes of price elasticity of demand. This we have done in our last class. So we were doing factors affecting price elasticity. तो जो हमने पहले फैक्टर किए थे वो था नेचर ऑफ कमोडिटी. अगर आपको याद है नेचर ऑफ कमोडिटी, तीन तरह की कमोडिटीज होती हैं. आपकी नेसेसरी कमोडिटीज होती है, कंफर्ट गुड्स होते हैं एंड लग्जरी गुड्स होते हैं. सो नेसेसरी कमोडिटीज में आपकी डिमांड क्या होगी? आपकी डिमांड इनइलास्टिक होगी. दैट मीन्स इवन इफ द प्राइस ऑफ द नेसेसरी गुड आइटम्स द डिमांड डज नॉट चेंजेस. इन कंफर्ट गुड्स द डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक. दैट मीन्स अगर इन तरह के गुड्स का, कंफर्ट गुड्स का प्राइस बढ़ता है या घटता है तो डिमांड में भी चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं. पर थोड़े बहुत चेंजेस इसलिए आते हैं बिकॉज वी आर इन हैबिट ऑफ यूजिंग दीज गुड्स एंड इट हैज बिकम अवर हैबिट to get the comfort out of these goods, so the demand does not changes much. The third type of commodity is luxury goods. Luxury goods के केस में क्या होगा, ये बहुत ही expensive goods होते हैं, तो अगर इनका प्राइस और बढ़ता है तो demand changes to a great extent. So in the case of luxury goods the demand is going to be highly elastic, right? So this was the first one we did yesterday, and the second one we did yesterday was proportion of total expenditure. The portion of total expenditure मतलब ये है इसका कि हम अपनी मंथली इनकम का कितना हिस्सा किन चीज़ों में खर्च करते हैं, कितना ज़्यादा हिस्सा किन चीज़ों में खर्च करते हैं और कितना कम हिस्सा किन चीज़ों में खर्च करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ऑन सॉल्ट, मैच बॉक्सेस वी स्पेंड अ वेरी लिटिल अमाउंट. बहुत ही लिटिल अमाउंट हम खर्च करते हैं मंथली में.
तो इस तरह की गुड्स का अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो हमारी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड इज गोइंग टू बी इन इलास्टिक, right? There are no going to be there are no there are as such no not going to be any big changes in your demand even if the price changes. और कुछ goods होते हैं like ऑन वेजिटेबल्स हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, मिल्क में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, या हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल में बहुत पैसा खर्च करते हैं. इन दिस केस क्या होगा, अगर इस तरह की चीज महंगी हो जाती है, मिल्क या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह महंगी हो जाती है, सो वी आर गोइंग टू रिड्यूस अवर डिमांड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज वी ऑलरेडी आर स्पेंडिंग अ ग्रेट पोर्शन ऑफ अवर इन मंथली इनकम ऑन सच गुड्स. सो हियर द डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक. सो इन दिस केस द डिमांड इज गोइंग टू बी elastic, right? The third factor we did was availability of substitute. मैं वो रिवीजन कर रही हूँ उन चीज़ों का क्योंकि हम कोई जल्दीबाजी में तो है नहीं. वी ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ टाइम विद अस एंड वी आर डूइंग our regular videos. So even if I do certain revisions and take some time out of the video for the revision, that's not going to hamper much of your time. So availability of substitute. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं. जैसे कि टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो सकता है, या नॉर्मल टी का सब्स्टिट्यूट ग्रीन टी हो सकता है. कॉफ़ी के सब्स्टिट्यूट्स आर देयर. सो इवन इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी राइजेस वी कैन गो फॉर टी, or if the price of tea rises we can go for coffee. So in such case the demand is going to be inelastic. इस केस में क्या रहेगी, आपकी डिमांड क्या रहेगी, इनलास्टिक होगी. लेकिन कुछ गुड्स होते हैं, some goods like salt do not have substitute. आप सब सॉल्ट की जगह कुछ और यूज नहीं कर सकते हो. इफ यू डोंट हैव सॉल्ट एट योर प्लेस विल हैव टू परचेज सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के बिना आप खाना कुक नहीं कर सकते हो. तो सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है. तो यहाँ पे अगर सॉल्ट का प्राइस बढ़ता भी है, मतलब ऐसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में मौजूद नहीं है, जिसका कोई और ऑप्शन मार्केट में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे डिमांड क्या रहेगी, इनलास्टिक रहेगी. मतलब इवन द प्राइस ऑफ दोज गुड्स हु डोंट हैव सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, इफ सच गुड्स प्राइस ऑफ सच गुड राइजेस द डिमांड इज नॉट गोइंग टू चेंज मच. ठीक है, तो these are the 3 points which we did yesterday. So today we are going to move further with our factors. So the another factor for today that I'm going to teach you today is your multi-purpose use of a commodity. Fourth point, multi-purpose use of a commodity. Now when we say multi-purpose use, what does that mean? That means कि किसी commodity का कितने तरह के uses हैं. Like for example, electricity has a lot of uses, milk has a lot of uses. So when such goods, when the price of such good rises, the demand also changes to when the price of such good changes, the demand also changes to a great extent. Like we can take example of milk. अगर मिल्क पहला मिल रहा था 50 रुपीज पर केजी का, राइट, एंड फिर ये हो गया 80 रुपीज पर केजी, तो क्या हो गया, आपके यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर डिमांड. ठीक है, यू आर गोइंग टू व्हाट, रिड्यूस योर डिमांड. सेम वे अगर वो पहला 80 रुपए किलो आता था और फिर वो 50 रुपए किलो हो गया दूध, तो व्हाट यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर डिमांड. क्योंकि आपको मालूम है कि आप दूध से बहुत सारी चीजें बना सकते हो, तो वो यू आर गोइंग टू इंक्रीज द डिमांड फॉर मिल्क. सो वी आर गोइंग टू से दैट इफ अ कमोडिटी हैज मल्टीपर्पज यूजेस, एंड if the price of such goods change, the demand also changes to great extent. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड. हमारे यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगी, मतलब डिमांड में फर्क पड़ेगा अगर इस तरह की कमोडिटीज का प्राइस चेंज होता है. सेम वे सॉल्ट की कोई बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज यूजेस नहीं है, सॉल्ट के कोई खास यूजेस नहीं है, या आप बोल सकते हो शर्ट का कोई खास यूज नहीं होता, आप शर्ट को सिर्फ पहन सकते हो, यू कैन वेयर शर्ट, राइट. सो अगर इस तरह की चीज़ों के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ते या घटते भी हैं, तो इस तरह की चीज़ों की डिमांड आप बढ़ाते या घटाते नहीं हैं, राइट. नेक्स्ट इज योर
price level. The fifth point is price level. Now what does price level says? यहाँ पे वो कह रहा है when the price of a commodity is very high or very low, the demand is generally less elastic. Price अगर क्या है? Price is if price is very high और very low. अगर price बहुत ज़्यादा high है या बहुत ज़्यादा low है तो यहाँ पे क्या होगा? आपकी demand elastic, less elastic और inelastic demand रहेगी. Demand is going to be less elastic और inelastic. अब बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है? नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज कार, अगर एक कार है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि कार है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आपकी कार है एंड वो कितने रुपए की आ रही है? 5 लाख की आ रही है. 5 लाख की कार आई. अब 5 लाख की कार आ रही है और 5 लाख की कार्स आर एक्सपेंसिव और ये प्राइस बढ़ जाता है. ठीक है, प्राइस बढ़ के कितना हो गया? 5,50,000 अगर हो जाता है तो क्या हो रहा है? इस 5 लाख 5,000 हो जाता है तो 5 लाख 5,000 हो जाता है. तो आपने कहा कि 5 लाख में से 5,000 ही बढ़ा है तो यहाँ पे आपकी डिमांड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ माइंडसेट दैट द कार्स आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव. सो इवन इफ द प्राइस rises slightly, you people are not going to decrease demand for this. तो यहाँ पे डिमांड पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा. सेम वे अगर हम दूसरी चीज की बात करें जो कि बहुत सस्ती आती है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं नीडल की. नीडल्स बहुत ही ज्यादा सस्ती आती है. मतलब नीडल मतलब क्या होता है? सुई बहुत सस्ती आती है या थ्रेड जो होता है कपड़े सिलने का जो धागा होता है वो भी सस्ता आता है. तो इस केस में क्या होगा? अगर प्राइस इनका कुछ बढ़ भी जाता है, अगर वन नीडल इफ सपोज वन नीडल इज फॉर ₹2, ठीक है, इवन इफ प्राइस डबल्स, प्राइस अगर डबल भी हो जाता है मतलब ₹4 हो जाता है तो भी इसकी डिमांड को हम नहीं घटाने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सस्ती आती है. तो जो फिफ्थ फैक्टर है वो ये कहता है द price level is also one of the factor which affects the price elasticity of demand to a great extent. How there are certain goods which are either very very expensive or they are very very cheap. In case of expensive goods, we can talk about cars. Like we know that cars are very expensive. It's around 5 lakh, 8 lakh, 10 lakhs, 12 lakhs, 15 lakh, 20 lakhs. So even if the price changes slightly, even if the price changes of such goods, we do not reduce demand. जब हम डिमांड कम ही नहीं कर रहे हैं, अपनी डिमांड कम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या है, चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी है. तो हमारे माइंड में ऑलरेडी बात है कि चीज़ तो ऑलरेडी महंगी, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी जाता है तो क्या फर्क पड़ता है. सो विद द माइंड सेट इज दिस दैट the demand so in this case the demand is not going to change, so demand is inelastic. Same way your cheap things में आपका needle है, thread है, तो ये चीजें, और needle मतलब कपड़े सिलने की सुई, धागा, thread is धागा, तो ये चीजें बहुत सस्ती आती है. इस तरह का प्राइस अगर डबल भी हो जाता है तो इनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो मतलब डिमांड क्या रहेगी? inelastic. So this was the another factor which affects demand. On the next factor is distribution of income. Sixth factor, fifth is a डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? कि मतलब आपके देश में क्या जो लोग में गरीब और अमीर लोग में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है, या अमीर ज़्यादा है गरीब कम है, या आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिल्कुल इक्वल है, मतलब ना तो कोई अमीर है ना तो कोई गरीब है, इज इट लाइक दैट? तो इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के अंदर आती है. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी इज नॉट इक्विटेबल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है? इफ नॉन इक्विटेबल है, मतलब there are certain people are rich and certain people are poor. In this case क्या होगा? The poor section of society is more vulnerable to the changes, to price changes, whereas from rich section is almost unaffected. So in this case poor people demand will be elastic and richer people
will have no change in demand, right? So if the distribution of income in your country is non-equitable or inequitable, then in that case the poor people of the society are going to face more problems. The price elasticity of demand for poor people is going to be elastic, whereas for the richer people the price changes will not affect the demand. So in that case it is going to be unequal. But in case the income is equitable, in case income is equitable, income is इक्विटेबल, अगर इनकम क्या है, इक्विटेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इक्विटेबल, दैट मीन्स नो रिच नो पुअर, कोई भी रिच नहीं है, कोई भी पुअर नहीं है. तो इस तरह के केस में क्या होगा, अंडर दिस कंडीशन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज जनरली इलास्टिक. यहाँ पे क्या होगा, डिमांड इज गोइंग टू बी इलास्टिक. यहाँ पे डिमांड इलास्टिक होगा. मतलब इस केस पे जब इनकम क्या होगी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज गोइंग टू बी इक्विटेबल. इन दिस केस द डिमांड व्हेन द प्राइस विल राइज और फॉल, द डिमांड इज गोइंग टू change accordingly. So in the case of distribution of income, we see whether the distribution of income is equitable or non-equitable. In case of equitable, the demand is going to be elastic. In case of non-equitable, for poor people it is going to be elastic, whereas for richer people it is going to be non-elastic. Now the next topic is your habits, taste, habits and taste, right? And customs of people and customs. See, this is the fifth point, and what does it say? It says that there are many people, those who are in habit of eating something, or they are alcoholic, or they are chain smokers, or they are in habit of taking certain type of commodity, and even the price of such goods rise, the demand does not changes. अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई चीज़ लेने की या कोई चीज़ खाने की बहुत ज़्यादा हैबिट है, और उस चीज़ का प्राइस अगर बढ़ता है या घटता है तो उसकी डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हैबिट में आ गया है. लाइक देयर आर मेनी पीपल दोज हु टेक ड्रग्स और अल्कोहल. सो दीज पीपल, व्हाट हैपन विद दीज पीपल, इवन इफ द प्राइस ऑफ द अल्कोहल राइजेस, even if the price of alcohol or drug rises, they still arrange for money and they purchase their commodity, they purchase their stuff. So because why? Because they are in habit of consuming it. Same way in the case of habits, the demand is going to be inelastic. कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्राइस के बढ़ने या घटने का. सेम वे टेस्ट के साथ है. अगर आपका किसी चीज के लिए टेस्ट है, इफ यू हैव अ टेस्ट फॉर ओनली ब्रांडेड शूज, यू वांट टू वेयर ओनली द शूज ऑफ गुड क्वालिटी, स्पोर्ट्स शूज, रीबॉक, एडिडास, एक्सपेंसिव शूज, इन दैट केस आल्सो यू आर नॉट गोइंग टू डिक्रीज योर डिमांड इवन इफ द प्राइस rises. And customs means हमारे क्या रीति रिवाज है. In certain cases we have certain रीति रिवाज in our traditional life. So in that case also we purchase for those things which we have been using since our ancestors were also using, and we also be using them out of the customs and traditions. So in that case also the demand is going to be inelastic. लेकिन अगर कोई आदमी किसी चीज़ की हैबिट में नहीं है, हैबिट की बात करें, अगर कोई आदमी किसी चीज़ की हैबिट में नहीं है, तो अगर वो चीज़ जिसे खाता है और उसको आदत नहीं है और वो चीज़ महंगी और सस्ती भी हो जाती है, in that case he can change his demand accordingly. Next topic is going to be, the last topic is factor affecting demand is your possibility of postponement of consumption. Of postponement of consumption. In this case we have to see कि कोई चीज को पोस्टपोन किया जा सकता है कि नहीं. पोस्टपोन मीन्स क्या है, किसी चीज के यूज को आगे बढ़ा देना. मतलब इफ यू कैन नॉट परचेज इट राइट नाउ, वी विल परचेज इट सम टाइम इन द नियर फ्यूचर. सो इफ सपोज द प्राइस ऑफ सर्टेन गुड्स राइजेस and there is a possibility that you can
postpone the use of such good or the purchase of such good, thinking that there may be fall in price of such goods, then in that case the demand is going to be what? The demand is going to be elastic, right? But in such certain cases we cannot postpone the use of that commodity. In that case we purchase even if the price is high. So if things cannot be purchased, if thing cannot be postponed, अगर आप किसी चीज की postpone नहीं कर सकते, cannot be postponed, like example मेडिसिन, अगर मेडिसिन आपको चाहिए तो आपको मेडिसिन अभी चाहिए, आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट थिंक कि जब महंगी सस्ती हो जाएगी, अभी महंगी है सस्ती हो जाएगी तो मैं लेके खा लूंगा. नो, यू आर नॉट वेल, यू आर नॉट feeling well, so even if the medicine is expensive you are going to purchase it because you want to feel well. So we cannot postpone the use of medicine in this case. In this case the demand is going to be less inelastic, right? Because we have to purchase even the prices higher. But if postpone can be done, in this case demand is going to be elastic. जैसे कि आपको शर्ट खरीदना है, एग्जाम्पल है शर्ट, यू हैव टू परचेज अ शर्ट. आपको शर्ट खरीदना है और शर्ट का प्राइस बहुत महंगा हो गया, पर्टिकुलर ब्रांड का शर्ट यू वांट टू परचेज एंड द प्राइस इज टू हाई राइट नाउ. सो व्हाट यू कैन डू, राइट? यू कैन postpone the purchase. You can postpone the purchase because shirt is not that important. You have other shirt also, you can purchase them. So children, this was your postponement, possibility of postponement. If possibility of postponement is there, the demand is going to be elastic, and if possibility of postponement is not there, then in that case demand is going to be inelastic. So these were the factors affecting demand, and in our next class we are going to sum up them in a short table. We are going to read them and sum up them. So class, keep doing your work, and I'll see you tomorrow in my next video. We'll be summing up the chapter. हम पूरा रिवीजन करके चैप्टर को खत्म कर देंगे. This is a lesson number 2, which within 1 or 2 video we are going to finish them up. Alright children, so stay at home and stay healthy. Keep doing your work. Thank you kids.